Some people are coming in and going out, playing the garba here. Just like that Anushka Sharma's dandruff आता है, जाता है, फिर वापस आ जाता है. Anyway, let's move ahead. Let me just brief you that what we had started last time around. So friends, we were there into the time value of money. We have understood the tremendous power of compounding. We know that money today is worth more than money tomorrow. We have also understood the time value of money from two perspectives. One is the earning power of money. That's why it shouldn't be kept idle. And another perspective was that there is an inflation which is constantly working against you. So from both the perspectives, we have understood the time value of money. Now let's go to straight away the practical questions. Slowly and steadily, hadu hadu, we will increase our levels. धीरे धीरे लेवल को बढ़ाना है, फिर हद से गुजर जाना है. तो शुरू करते हैं छोटे छोटे सम्स के साथ. Let me just open my Excel worksheet. From then we will start solving the question. इधर गया हमारा वर्ड, हाँ इधर रहा. Yes, so you should be conceptually, fundamentally well versed with the time value of money, and then we will go to the Excel part of it, that how to solve the complex variety of time value of money by using the Excel functions. That will be seen later on. Let's go to, first of all, the future value of single cash flow. Now let me just give you the idea about the process called compounding and discounting. As we have seen that there are two types of return. One is simple in nature, which is not reinvested. Another type of return is reinvested again into your funds. Now friends, if you want to go from present value to the future value, sir, I have invested 1 lakh rupees and I want to know that what will be the value of that 1 lakh rupees after 5 years. Then there is a process called compounding that should be followed. And sir, if I have a goal-based planning that sir, after 5 years, मुझे है ना 1 लाख रुपए चाहिए कैसे भी किधर भी, and I am expecting 10% of the return. So you tell me what should I invest right now so that I'll be getting 1 lakh rupee. Now that's called from present value to, from future value to present value. This is the process of discounting. तो भैया फ्यूचर वैल्यू में से प्रेजेंट में आना उसे कहते हैं डिस्काउंटिंग, और प्रेजेंट से फ्यूचर में जाना उसे कहते हैं कंपाउंडिंग. तो हम देखते हैं कंपाउंडिंग क्या होता है. अभी अपन कंपाउंडिंग प्रोसेस के अंदर है. वी विल बी फाइंडिंग द फ्यूचर वैल्यूज. एंड फ्रेंड्स, वी आर राइट नाउ टेकिंग द सिंगल कैश फ्लो. दैट मीन्स द कैश इनफ्लो एंड कैश आउटफ्लो आर अकरिंग ओनली फॉर अ वन पॉइंट ऑफ टाइम. नाउ इट मे बी थॉट फ्रॉम अ पर्सपेक्टिव ऑफ अ लोन, from a perspective of an investment too. Sir, if I am investing right now 1 lakh rupees, what will be a future value after this? Now this is a single slot investment, and a single slot lump sum money will be taken after 5 years. बीच में कुछ हो ही नहीं रहा है भाई बेटे लोग, बीच में कुछ भी हो ही नहीं रहा है. एक कैश इनफ्लो हुआ, कैश आउटफ्लो हुआ, इसे कहते हैं सिंगल कैश फ्लो स्ट्रीम. इसका फॉर्मूला अलग है, एन्युटीज का फॉर्मूला अलग है. देयर में डिफॉल्ट एंड डिविडेंड एन्युटीज टू, देयर में डिफरेंशियल कैश फ्लो टू, देयर में बी n number of other varieties in that. Right now we are into a single cash flow stream. It can also be thought from the perspective of a loan. सर अगर मैंने 1 लाख रुपए का लोन लिया है तो फिर मुझे 5 साल के बाद कितना चुकाना पड़ेगा इंटरेस्ट के सहित फॉर द रीपेमेंट ऑफ लोन इन अ वन लंप सम स्लॉट. तो ये लोन भी हो सकता है, इन्वेस्टमेंट भी हो सकता है. यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज होते हैं, अरे भैया लोन हो कि इन्वेस्टमेंट हो, इसमें दोनों में सिर्फ एक ही फर्क पड़ता है. दैट इज द फर्क ऑफ इनफ्लो एंड आउटफ्लो. द प्रोसेस डज नॉट गेट चेंज्ड, it will be compounding only. Well, let's go to the question straight away. You will always take a snap of all the questions.
And once the module will be over, I will circulate all the classwork questions. Along with that, I'll also give you the practice questions. So this is how our teaching methodology is going to be. May I have a confirmation from students that I should move ahead now with the questions? All of you? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay, thank you so much, miss. Thank you so much. बच्चों के चेहरे बदल गए हैं भैया, निकुंज तो बहुत अलग लगने लगा है अब। सर 2 सेमेस्टर के बाद अभी 2 साल तो ऐसे घर पे बैठे हैं, तो फिर थोड़ा सा फर्क तो आएगा। Okay, Mr. Virat Kohli wants to invest 10 crores in one project of creating the chain of gymnasiums across the India. उसको क्या करना है, हमें क्या मालूम है? तेरे को जो करना है भाई, हमें क्यों बता रहा है तू? He expects the return of 12% compounded on a yearly basis. What will be the future value after 5 years? भैया कंपाउंडिंग हो रहा है on a yearly basis. विराट भाई साहब ने 10 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करने हैं, तो उनको मालूम पड़ना चाहिए कि भैया 10 करोड़ की वैल्यू कितनी हो जाएगी अगर वो 12% रिटर्न गेन करते हैं इस वाले प्रोजेक्ट में से। So we are finding the future value, and the formula of the future value for the single cash flow will be PV multiplied by 1 plus R raised to N. Very, very simple formula. PV stands for the amount of investment or the loan you take right now. And then R stands for the rate of return expected or the rate of interest in case of a loan. Or N stands for the number of years. तो भैया कितना इन्वेस्ट करना चाहते हैं कोहली भैया? 10 करोड़ रुपए। चलो 10 करोड़ रुपए लिखते हैं, मिंडे में गलती नहीं करनी है, अदरवाइज हमें मिंडा मिलेगा। आर कितना है? 12%, 0.12। एन कितना है भैया? 5 साल के लिए इन्वेस्ट करना है कोहली भाई साहब को। Now I must appreciate the kind of the fitness standards which are improved under Virat Kohli's captaincy. Right now we are playing with 2 teams internationally. One is playing in Sri Lanka, another one is playing in England. और उसके अलावा भी कितने सारे लोग ऐसे ही बाहर बैठे हुए हैं जो इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं। This is a formidable force this fellow has built. Obviously, the credit does not go just to him. There are many others who are working along with him. But a fair share of credit should go to him. क्योंकि उसके आने के बाद फिटनेस के स्टैंडर्ड्स इंडिया के टीम के अंदर बढ़े भैया, बढ़े। एक्सेप्ट करना बनता है। मेरा भी फेवरेट प्लेयर तो रोहित शर्मा ही है, लेकिन अभी जो जहाँ पे अपने अगेंस्ट में फैक्ट्स जा रहे तो फिर एक्सेप्ट कर लेना कि हाँ यार विराट कोहली बेटर है। चलो 10 करोड़ मल्टीप्लाइड बाय 1.12 रेज़ टू 5 सो इक्वल्स टू। अब सर हम कैलकुलेटर में कैसे करेंगे? एक पहली बात मैं बता देता हूँ, जितने भी कैलकुलेशंस टाइम वैल्यू ऑफ मनी में होने वाले हैं उसमें एक भी जगह हमें टेबल यूज नहीं करना है। ये क्या बच्चों वाली बात हो गई, टेबल यूज करना है? मेरे बच्चे टेबल बना सकते हैं एक्सेल के अंदर। टेबल यूज करना, मैं बोला कोई लोग बताते हैं कि सर टेबल के हिसाब से, ये टेबल यूज ही नहीं करना है कहीं पे। Irrespective of the complexity of calculations, for everything we have got a hack here, nothing to be worried about. तो ये 5 वाला है तो वो तो कैलकुलेटर में इजीली हो जाएगा। 1.12 multiplied by 1.12 press equal to, keep pressing equal to for 3 more times. आपको 4 बार equal to प्रेस करना है, क्योंकि पहली बार जो 1.12 multiplied by 1.12 किया उसमें दो ऑलरेडी आ गए, तो टोटल इक्वल टू आपका 4 टाइम प्रेस होना चाहिए। तो क्या आता है, कौन बताएगा भैया, कौन बताएगा? चलो ये करके बताओ। 10 करोड़ मल्टीप्लाइड बाय व्हाट डू वी गेट? 1.76234. 1.76234. Is it clear? Yes. ओके, थैंक यू सर। मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है? सर अपन है ना डिजिट के बाद 4 पॉइंट के बाद एटलीस्ट 4 डिजिट लेंगे, तो क्या है कि अप्रोक्सीमेशन है ना वो कम हो जाए थोड़ा सा। सो इट विल बी 17 करोड़ 62,34,000। अब कोई बच्चों ने जो 4 डिजिट लिए होंगे तो फिर थोड़ा सा फर्क आएगा आंसर में, तो चलता है बेटा। बड़े बड़े क्वेश्चंस में छोटे छोटे अप्रोक्सीमेशंस होते रहते हैं सेनोरिटा। वी हैव गॉट द फ्यूचर वैल्यू, वेरी सिंपल। धीरे धीरे हड़ू लेवल को रेज करते हैं। मिस पिकू
wants to buy a Mercedes car after 8 years for her father. The national crush, Miss Deepu, in other words, wants to buy a Mercedes car after 8 years for her father. She will invest 10 lakhs now for 8 years, compounded on a monthly basis at 15% expected rate of return. What amount she will have after 8 years? सर यहाँ पे तो मंथली बेसिस पे कंपाउंडिंग हो रहा है, उसका मतलब क्या हो गया? उसका मतलब ये हो गया, समझ लो कि तुम्हें बेटा 12% का ईयरली रेट है, ठीक है, 100 रुपए तुम इन्वेस्ट करते हो, तो मंथली कंपाउंडिंग का मतलब ये है कि तुम सबसे पहले तो तुम्हारा जो रेट है ना उसको नंबर ऑफ मंथ से डिवाइड करते हो, नंबर ऑफ मंथ्स इन अ ईयर, विच इज बेसिकली कॉल्ड एज एम इन आवर फॉर्मूला, नंबर ऑफ पीरियड्स इन अ ईयर। तो वो कितना आ गया? 1%। तो तुम पहले महीने 1% दोगे तो तुम्हारा फंड हो जाएगा 101 at the end of the first month. Now the 1% will be charged on 101, not on 100. तो ऐसे मंथली 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 कंपाउंडिंग हो रहा है। तो सर फॉर्मूला में कुछ चेंज होगा? नहीं, कुछ नहीं चेंज होगा, एक छोटा सा माइनर चेंज होगा, सॉरी। सो FV equals to PV multiplied by 1 plus R। जब कभी भी ईयरली कंपाउंडिंग ना हो और मंथली हो कि 6 मंथली हो कि क्वार्टरली हो कि कौन सा भी कंपाउंडिंग आ जाए, you will divide rate by number of periods in a year and you will multiply n by number of periods in a year. M stands for the number of periods in a year. If it is a monthly compounding, the number of periods in a year will be 12. If it is quarterly, then it will be 4. If it is 6 monthly, it will be 2. तो चलो आगे बढ़ते हैं। कितना इन्वेस्ट करना चाहती है हमारी पिक्कू? 10 लाख रुपए। तो पिक्कू आके बोली कि रौनक भैया अपने को ना काम करना है, 10 लाख रुपए इन्वेस्ट करने हैं इतने साल के लिए और इतना परसेंटेज रेट ऑफ रिटर्न है, तो तुम फ्यूचर वैल्यू फाइंड करके बताओ। मैं बोला बाकी सब तो ठीक है, लेकिन ये भैया गलत बोल दिया। भैया होगा तुम्हारा रणबीर, मैं भैया नहीं हूं, ठीक है। सो 15%, सो 0.15 divided by 12 raised to n will be a number of years, that will be 8 multiplied by 12 because we have got 12 months in a year. Now some people would be like, sir 96 आएगा, अब कैसे कैलकुलेटर में करवाओगे? बताओ, बहुत बड़ी बड़ी बातें करते थे, अब कैसे कैलकुलेटर में करवाओगे? तो रुको जरा, सब्र करो। 1.15 divided by 12, so what do we get? Can someone tell me please? Point 15 divided by 0.0125. 0.0125 raised to, there will be 96, 12×8=96। Some people will like 12×8=96 ये क्या होता है? बेटा मैं गुजराती मीडियम स्टूडेंट हूँ, तो मेरे कैलकुलेशन है ना गुजराती में होते हैं। I am really sorry, I'll repeat that in English to 96, so equals to 10 lakhs। अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि सर यहाँ पे विदाउट टेबल कैसे करें? There is a very basic algebraic mathematic property. When the base is multiplied, the power is added. Yes, you want to say something? किसी को कुछ बोलना? अच्छा, बच्चों का है ना माइक है वो बीच बीच में अनम्यूट हो जाते हैं, फिर पूछता हूँ तो जवाब नहीं देते। तो मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर वो श्वेता जैसा सीन हो जाएगा। एवरीवन वाज चिल्लाइंग, श्वेता रुक जा, ऐसा मत बोल। Okay, so the basic mathematic property is that when you multiply the base, the power gets added. इसका मतलब ये है सर कि इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, 0.0125 raised to 20 multiplied by 0.0125 raised to 20 multiplied by 1.0125 raised to 20 again, multiply with the same value again। तो कितनी बार हो गया? 20, 20, 20 और 20, 80 बार हो गया। और कितनी बार बाकी रहता है? 16 बार, 0.0125 raised to 16। तो बेटा इसके कट के तुम्हें जितने चाहो उतने कर सकते हो।
तुम्हें 5-5 के करने हैं करो, तुम्हें 15-15 के करने हैं करो, कौन रोक रहा है तुम्हें? तो 20 वाला है ना, वो एक ही बार फाइन करना पड़ेगा। अच्छा, दूसरा ऑप्शन ये है कि यू मे टेक द लॉगरिदम्स टू। तो लॉगरिदम वाला क्वेश्चन है ना, वो नेक्स्ट हम देखने ही वाले हैं। लॉगरिदम और भी बहुत सारी जगहों पे, सिक्योरिटीज वैल्यूएशंस में, डेरिवेटिव्स वैल्यूएशंस में, ऑप्शंस में यूज होने वाला है। तो अभी से थोड़ा लॉगरिदम का बेस क्लियर कर देते हैं, ठीक है? एकदम मस्त, धीरे धीरे हड़ू हड़ू जा रहे हैं। ऐसा भूल जाओ कि हमने टाइम वैल्यू अपना पहले सीखा हुआ है। स्लोली स्लोली। तो आप 0.125 को रेज टू 20 यू कैन फाइंड इट फॉर वन टाइम, और जो भी आंसर आया उसको यहाँ पे रिप्लेस कर दोगे और एक बार 16 फाइंड कर लेना है। सर 20 में भी प्रॉब्लम हो रहा है, तो 20 में अगर हो रहा है तो आपको इक्वल टू कितनी बार प्रेस करना होगा? 19 टाइम्स। जितना पावर है उससे एक कम करके इक्वल टू उतना नंबर होना चाहिए आपके कैलकुलेटर में। बस यही। अगर सर पावर 10 है तो इक्वल टू कितनी बार होगा? 9 बार। समझे कि नहीं समझे भैया? Yes, sir. Yes, sir. ओके, थैंक यू। चलो मैं इधर फाइंड कर लेता हूं। तो इक्वल्स टू 1.0125 रेज टू 96। मेरे पास तो एक्सेल है तो मैं तो कुछ भी कर सकता हूँ। 3.2955। So it will be 32,95,500। थोड़ा सा अप्रोक्सीमेशन होगा लेकिन चलता है। अच्छा, अब है ना वो एमसीक्यू काइंड ऑफ मूड में से निकल जाना बेटा, क्योंकि ये सेमेस्टर ऑन पेपर होने की पूरी संभावनाएं हैं एग्जाम्स। तो पहले तो था यार एमसीक्यू देना ना, तो फिर ये कर लेंगे बेटा, बिगड़ेगा। अभी मस्त कोरोना के अंदर आपके सीजीपीए एसजीपीए इंक्रीज हुए हैं, ऐसे बैठे बैठे लस्सी पीते पीते सीजीपीए इंक्रीज हुए लोगों के। अब ये एक आधा 2 सेमेस्टर हमारी लगा के ना जाए वो देखना है, तो अच्छी तरीके से ध्यान देना है, ठीक है? ऑन पेपर एग्जामिनेशन होने के पूरे चांसेस है इस सेमेस्टर में। अब जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। चलो यहां तक क्लियरिटी है सबकी? छोटा सा कंफर्मेशन थ्रू द चैट बॉक्स प्लीज। Yes, sir. ओके, थैंक यू मिस रुतवी। अदर्स बाकी सब किधर है भैया? आई एम देयर इनटू फोमो जोन, फियर ऑफ मिसिंग आउट। ओके, थैंक यू सो मच मिस्टर ध्रुव। मेरे को फिर फोमो लग जाएगा कि बच्चे तो जवाब ही नहीं दे रहे इधर। मिसेस मेलिंडा गेट्स wants to invest 10 lakhs from her alimony with 12% return expectations for 5 years. Some people will be like, sir, ये alimony, divorce, miss, ये मेलिंडा, इसको सबको घुसाने की क्या जरूरत थी? मजा आया मेरे को, मैं प्रोफेसर हूँ, मेरे को जो करना है करूँ। Compounded on a continuous basis, what will be future value after 5 years? Try to understand. He is saying that, she is saying, sorry, that she wants a compounding on a continuous basis. अच्छा, ये continuous क्या होता है भैया? ये क्या continuous है? ये तो समझ में नहीं आया। ये continuous क्या होता है? कौन बताएगा? चलो ईयरली समझ में आया, 6 मंथली समझ में आया, क्वार्टरली समझ में आया, मंथली भी समझ में आ गया। ये कंटिन्यूअस क्या है? ये कंटिन्यूअस क्या है? Assumption that it will be for an infinite period of time. तो पीरियड ऑफ टाइम तो फिक्स है 5 साल का। She wants the future value after 5 years. है नहीं? अब ये मेलिंडा गेट्स ने गूगली फेंकी, उसको एक तो डाइवोर्स के पैसे मिल गए इतने बड़े एलिमोनी के, और उसमें वो 10 लाख रुपए। बोला मैडम 10 लाख रुपए, आप तो इतने महान हो, इतने पैसे। बोले कोई बात नहीं, रोना, कभी सिर्फ 10 लाख से शुरू करना है। आई जस्ट वांट टू टेस्ट योर नॉलेज, और अगर तुम्हारे पास नॉलेज है ना तो फिर मैं तुम्हें बड़े बड़े काम दूंगी। तो बोला ठीक है मैडम, मैं कुछ करता हूँ। तो मैं गया BBA के
बच्चों के पास। मैंने क्वेश्चन पूछा भैया इसको कंटिन्यूअस कैसे कहते हैं, तो बच्चों ने कर दिया रौनक सर का पोपट। वो बोले सर हमें भी नहीं मालूम। अब क्या करे? अब कंटिन्यूअस का मतलब क्या होता है? अब कंटिन्यूअस तो बोलेगा सर कोई कंपाउंडिंग डेली बेसिस पे होता है, मतलब 365 डेज, हर दिन कंपाउंडिंग, हर दिन कंपाउंडिंग। तो फिर कोई उससे भी पर्टिकुलर बंदा आया और बोला कि भैया एक दिन में है ना 24 घंटे होते हैं, तो हर घंटे कंपाउंडिंग हो रहा है, तो एक एक घंटे का कंपाउंडिंग क्यों नहीं डाल रहा है? फिर उससे भी कोई तेज आया, वो बोला कि एक एक मिनट होती है भैया, एक घंटे के अंदर 60 मिनट होती है, तो नंबर फाइंड द नंबर ऑफ मिनट्स इन द ईयर एंड डू द कंपाउंडिंग ऑन अ मिनट टू मिनट बेसिस। फिर वो अल्बर्ट आइंस्टाइन की कोई तो पिछले जन्म की कोई हमारे पास हस्ती आई और बोली कि सर सेकंड्स भी होती है मिनट के बाद तो। और कोई माइक्रोस्कोप लेके आया, बोले सर माइक्रो सेकंड्स भी होती है, नैनो सेकंड्स भी होती है, तो आप है ना नैनो सेकंड से मल्टीप्लाई करो एन को और रेट को डिवाइड करो नैनो सेकंड्स इन अ ईयर। और मेरा मेरा है ना ये घूमने लगा। मैं बोला यार अब क्या करे, अब क्या करे यार, नैनो सेकंड्स थोड़ी ना फाइंड कर सकते, वो भी ईयरली। इतनी फाइंड करेंगे तो हम कहाँ जाएंगे? फिर मेरे को कुछ आइडिया आया, मैं बोला चल थोड़ा सा मैथमेटिक्स लगाते हैं। फिर मैं फॉर्मूला लिखा। मैं बोला फॉर्मूला क्या होता है? पीवी मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस आर रेस टू एन, and when we have got a compounding frequency different from a yearly, then what do we write? PV multiplied by 1 plus R divided by M, and here N will be multiplied by M. चलो इतना है। अब एक काम करते हैं, N है ना उसको T ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? T मतलब कि टाइम पीरियड। तो सर क्या मजा आया N को T करने में? कोई मजा नहीं आया, लेकिन वो एक्सपोनेंशियल वाले जो फंक्शंस रहते हैं ना फॉर्मूला, उसमें टी शब्द का ज्यादा उपयोग होता है, इसलिए मैं टी ले रहा हूं। तो पीवी मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस आर डिवाइडेड बाय एम रेज टू टी डिवाइडेड बाय एम। अब मैं बोलता हूं चलो कुछ मॉडिफाई करते हैं फॉर्मूला, आज कुछ तूफानी करते हैं। तो पीवी मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस आर डिवाइडेड बाय एम डिवाइडेड बाय, मेरे को लगा यार एक काम करते हैं ना, अपन है ना आर से टी को मल्टीप्लाई करते हैं तो आर टी हो गया, और एम को डिवाइड करते हैं आर से तो एम डिवाइडेड बाय आर हो गया। तो न्यूमरेटर में भी आर लिखा, डिनोमिनेटर में भी आर लिखा। तो कोई लोग बोले कि ऐसा क्यों किया? मेरे को मजा आया ना इसलिए किया, क्योंकि हम फॉर्मूला डिराइव कर रहे हैं बेटा अभी, इसलिए। अब एक काम करते, थोड़ा सा ऑर्डर चेंज कर देते इन दोनों का, ठीक है? सो इक्वल्स टू पीवी multiplied by 1 plus r divided by m, in bracket you will, in bracket after raised to you will have m divided by r multiplied by r and t। अब एक काम करते हैं, एक छोटा सा और डिफरेंस करते हैं। pv मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस r है ना, r उसको डिनोमिनेटर में लेके जाते हैं, तो वहां पे क्या हो जाएगा r, और वो r हो गया m के डिनोमिनेटर में, सो इट विल बी m डिवाइडेड बाय r, इन रेज टू वी विल हैव m डिवाइडेड बाय r, एंड इन मल्टीप्लिकेशन वी हैव r मल्टीप्लाइड बाय t। सर क्यों इतना कॉम्प्लिकेटेड कर रहे हो? क्या करना चाहते हो? जल्दी से बता दो। कर रहा हूं बेटा, थोड़े ही समय में आ रहे हैं। अब इसको है ना एक अज्यूम कर लेते कि ये है ना एक फंक्शन है, ठीक है? ये जो बॉक्स बना है ना ये एक फंक्शन। लेट x equals to m divided by r, so it will be like 1 plus 1 divided by x raised to x। अब ये x है, वो भी कितनी बार जाएगा मालूम नहीं है, कंटिन्यूअस जाता जाएगा जाता जाएगा जाता जाएगा, क्योंकि नंबर ऑफ पीरियड्स इन अ ईयर है तो कैलकुलेट ही नहीं हो पा रहे कंटिन्यूअस का क्या मतलब है। तो नंबर ऑफ पीरियड्स 5 साल के अंदर इनफाइनाइट हो गए, जैसे ऋतु ने पहले बताया। सेकेंड्स की गिनो, माइक्रो सेकेंड्स गिनो, और ये सब टाइम फ्रेम तो हमने बनाया भैया, हमारी खुद की एफिशिएंसी के लिए। लेकिन ऐसे कोई टाइम जोन है ही नहीं, कंटिन्यूअस का क्या मतलब। और इधर भी रेज टू में
बढ़ता ही जाएगा, 1 2 टाइम्स 3 टाइम्स 4 टाइम्स 6 टाइम्स 7 टाइम्स 8 टाइम्स 9 टाइम्स 11 टाइम्स, तो इसका तो कोई एंड ही नहीं है। फिर मैथमेटिक्स में एक कॉन्सेप्ट आया, फैक्टोरियल कॉन्सेप्ट। क्या आया? फैक्टोरियल कॉन्सेप्ट। तो तुम x को पहले 1 करो, फिर उसके बाद में 2 करो, फिर 3 करो, फिर 4 करो, तो आपके जो नंबर ऑफ पीरियड्स है वो कंटिन्यूअसली बढ़ते जाते हैं। तो मैंने क्या किया मालूम है? नाउ इफ यू गॉट सच काइंड ऑफ एन इक्वेशन, नो, यू मे यूज द फैक्टोरियल एज पर द मैथमेटिक्स टू सॉल्व सच थिंग. So it will be 1 plus 1 divided by 1 factorial plus 1 divided by 2 factorial plus 1 divided by 3 factorial plus 1 divided by 4 factorial plus 1 divided by 5. और सर इसका भी कोई अंत है ही नहीं, ये तो बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया. अब ये फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है? फैक्टोरियल मतलब कि उसके पीछे वाले जितने भी नंबर होते हैं ना, उसका मल्टीप्लीकेशन. अगर मैं बोलूं 3 फैक्टोरियल तो मतलब हुआ 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 1, सो इट विल बी 6. मैं बोलूं 4 फैक्टोरियल तो उसका मतलब हुआ 4 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 1, तो 4 तेरी 12 2 24, એટલે it would be 24. So let's solve this up to certain extent. 1 plus 1 divided by 1 factorial will be 1. So 2 factorial will be 2. So 3 factorial will be 3 दूने 6 plus 4 factorial will be 24, and it will go on and on and on and on and like this. Now if you keep on adding this, after such an extent, say it would be 7 factorial, 8 factorial, the denominator will become so huge that the marginal addition into your factorial will be quite less and quite insignificant. So it will slowly and steadily approach to a number called 2.718. So this is the derivation of exponential factor called 2.718. Just like we have got the magical number like pi, we have got a magical number like exponential factor in the mathematics. When the next addition is greater than the earlier addition, it is called the exponential rise. तो मंथ करो मंथ के आगे, डेज करो डेज के आगे, आवर्स करो आवर्स के आगे, सेकंड्स करो सेकंड्स के आगे, ये करो, each and every addition is increasing and is more than the previous addition, which is the exponential rise. So let me use this 2.718 into the function, the actual function. So it will become like PV multiplied by E raised to RT. We have taken this as a function, no? So FV का फॉर्मूला हो गया PV equals to FV equals to PV multiplied by E raised to RT. This is the derivation of formula. सर डेरिवेशन आएगा हमारे एग्जाम में? बेटा नहीं आएगा, लेकिन फिर भी लर्निंग में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है, ठीक है? चलो shall I move ahead guys? आपको समझा 2.718 कैसे आया? Yes, sir. ओके, Yes. थैंक यू. चलो आगे बढ़ते हैं. तो मिस मेलिंडा आके बोले कि मुझे ना 10 लाख रुपए इन्वेस्ट करने में. बोला कोई बात नहीं, कर देता हूँ मैडम. फिर मैंने बताया कि हमने डिराइव कर लिया, आपका हो गया पोपट, आपको लग रहा था कि हमें नहीं आएगा, ऐसा है, हमें आ गया. इट इज 2.718 रेज टू RT. वो मेलिंडा मैडम की एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न कितनी है? 12%. और T है नंबर ऑफ इयर्स, दैट इज 5. सो 0.12 मल्टीप्लाइड बाय 5, तो ये हो गया 10 लाख multiplied by 2.718 raised to 0.60. So Melinda madam would be like, again, Ronak sir 0, Melinda madam 1. I said, why? She would be like, say you are again mathematically stuck. I said, मैं फिर से BBA FM के स्टूडेंट्स के पास आया, अब इसका क्या किया जाए? चलो भैया बोलो, मार दिया जाए कि छोड़ दिया जाए? बोलो 2.718 raised to 0.60 के साथ क्या सलूक किया जाए? क्या करते हैं? कैसे फाइंड होगा ये?
Some people will be like scientific calculator. नहीं हाँ एग्जाम में अलाउड है साइंटिफिक कैलकुलेटर एज ऑफ नाउ, लेकिन कल जाके अलाउड कर दे डिसअलाउड कर दे हमें नहीं मालूम। तो अपन तो ऐसे ही अज्यूम करेंगे कि हमारे पास साइंटिफिक कैलकुलेटर है ही नहीं। बताओ 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 बताओ, चलो ये करके बताओ। When we are stuck, we go to mother. मम्मी ये हो गया वो हो गया, हमारे साथ नाइंसाफी हो गई, बेवफा कोई छोड़ के चले गए, इतना हमारे साथ जुल्म हो रहे हैं। तो वैसे ही जब मैथमेटिकली स्टक होते हैं तब हम मैथमेटिक्स के मदर के पास जाते हैं, एंड द मदर ऑफ मैथमेटिक्स इज लॉगरिथम्स। और उसमें भी बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं बैठा हूं भैया। लेट्स अज्यूम दिस x इक्वल्स टू 2.718 raised to 0.60. Taking log on both the sides because we follow LHS RHS. So log of x equals to, the first property of logarithm is that whatever is there in a power will come into a multiplication if you take a log of the base value. So 0.60 multiplied by log of 2.718, ये बैक ऑफ द माइंड ऐसे मस्त रट्टोफाई कर लेना है। 0.60 मल्टीप्लाइड बाय लॉग ऑफ 2.718, सो 0.60 मल्टीप्लाइड बाय, अब आते हैं लोगरिथम के टेबल में। तो कुछ बच्चे बोलेंगे कि हमारे पास तो लोगरिथम टेबल है ही नहीं। So I am giving you 1 minute uninterrupted to find it from the Google. So just search it like log anti-log table PDF. So you will get various log tables in the Google itself. तो अभी के लिए तुम ये वाला यूज कर सकते हो, मैं अभी बता ही रहा हूं तुम्हें। तो इसमें से अपन काम चलाओ कर सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में अपन डाउनलोड करके आएंगे, और या तो फिर मैं आपको ये वाला सर्कुलेट कर दूंगा। तो लोग से बेटा भागना नहीं है, क्योंकि वो है ना आगे बहुत सारे कैलकुलेशंस में भी काम आने वाला है। सो दैट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट, लोग सीख लो तो अच्छा बात है। साइंटिफिक कैलकुलेटर है, मैं आपको क्या करने की जरूरत है, ऐसा नहीं करना है, सीख लो फिर भी। चलो डाउनलोड कर दो, फिर आगे बढ़ते हैं। 1 minute अनइंटरप्टेड गिवन। और एक बार डाउनलोड हो जाए तो चैट बॉक्स में जरा सा सर रेडी ऐसा कुछ लिख देना कि रेडी, तो आई कैन मूव अहेड। ये बिल्डिंग वाले कितना काम करते हैं यार, पूरा दिन काम करते रहते, मशीन चलते रहते हैं इनके। जिंदगी में कुछ भी करो, लेकिन जो प्रोजेक्ट अभी तक बना नहीं है ना, उस प्रोजेक्ट में रहने के लिए मत आओ। ये 2-3 साल तक आपकी जिंदगी बर्बाद करके रख देते हैं ये लोग। चलो डन हो गया, ऋत्वी का डन हो गया, हिरवा का हो गया, मीराली का भी हो गया। एंड द गर्ल पावर इज डोमिनेटिंग माय चैट बॉक्स टुडे। ओ बिडलो किधर हो? ओ मिश्र आश्रया, ये भी गर्ल, और ओ माय गॉड, हमारे वाले सब बैठे हैं सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करने में होशियार होते हैं हमारे लोग। भैया देखो, एक जेंडर अपन से बहुत आगे जा रहा है। हाँ आया आया, कोई तो आया, निकुंज आया। ध्यान रखना, ये जेंडर के सामने अपन फिर टिकने वाला है नहीं। बहुत मेहनत कर रहे हैं यार, ये बहुत डिस्प्रपोर्शनेट शेयर हो जाएगा हमारा प्रगति में।
ध्यान रखो भैया, वरना एक जेंडर बहुत आगे चला जाएगा, फिर आने वाली पीढ़ी पूछेगी हमारे पापा लोग ने क्या किया, कुछ नहीं किया, मम्मी लोग आगे बढ़ गई बहुत। ओके and that is also observed from my side. Whenever there is a merit based admission, no, from the percentages point of view, then always there is always a more quantity of girls in that class. I had studied in Mithibai College, so there at that time from the class of 70 to 80, there were only 5 to 10 boys, and rest everyone was girl. So जहाँ पे भी मेरिट बेस्ड एडमिशन होता है ना, वहां पे हमारा कट ऑफ था अराउंड 89% मेरे समय पे 10th में, और उसके बाद तो अब तो 90 to 93% हो गया है, तभी जाके आपको एडमिशन मिलता है। तो गर्ल्स वहां पे मेरिट बेस्ड में ज्यादा क्वालिफाई होती है। एनीवे चलो जाने देते हैं। और ये लॉग कैसे लेना बताओ आप। तो बेटा लॉग के कुछ नियम है, समझने की कोशिश करो। Irrespective of the fact that wherever the decimal is, you will take the log of first two values. I am repeating this. Irrespective of the fact that wherever the decimal is, you will take the log of first two values. You will see the value in the column of 1 and you will add the min difference of 8 from the log table. Now if you see the log table, then you will go straight away to 27 because these are the two values we have got. So 27 this. In that, this main column table starts with 0, then 1, 2, 3, and it goes to somewhere near to 9. And then the min difference table gets started. तो सर 27 में अपने को 1 के कॉलम में जाना है, तो 1 का कॉलम मतलब कि ये वाला हो गया 4330. So I'm doing the circling it out there. And then the min difference of the value of 8. Now 8 का min difference, अब min difference शुरू इधर से होता है, min difference 0 से नहीं 1 से शुरू होता है। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and 9. तो हमें कौन से वाले का मिन डिफरेंस देखना है, 8 का। तो 8 का मिन डिफरेंस आता है सर 13, आता है कि नहीं आता, उसी लाइन में, हाँ उसी लाइन में रहना है, 27 की लाइन में। नाउ 13 विल बी एडेड ओवर हियर इन दिस वैल्यू व्हिच इज 4330. सो इफ यू ऐड 13 इन 4330 इट बिकम्स 4343. बस 4343 कहीं पे लिख दो, फिर आगे का डिस्कस करते हैं। चलो यहां तक क्लियर है 4343 कैसे आया। 27 1 की कॉलम में देखना है और उसमें मिन डिफरेंस 8 वाले का ऐड करना है। सो 4330 में 13 इफ यू ऐड यू गेट 4343. यहां तक क्लियरिटी है? कंफर्मेशन प्लीज। Yes, sir. ओके चलो थैंक यू सर। अब यहाँ पे डेसिमल कहाँ रखना? तो सर before point how many digits are there? Who will tell me? Here in the log value, before point how many digits are there? I'm talking about digits, not number. 1 digit. 1 digit. It may be 9, it may be 7, it may be 1, it may be 2, it may be 3, it may be 4, whatever the case it may be. How many digits are there? There is 1 digit. Now if there is 1 digit, you will reduce 1 from that digit. So if you reduce 1 from that, it becomes 0. Yes or no? So your answer should start with 0.4343. Let me complete this. I am still into the explanation. Say if it would have been 27.18, then 4343 would have been the same. अब यहाँ पे पॉइंट से पहले कितने डिजिट है कौन बताएगा? चलो बताओ, चलो बताओ। 2. हाँ 2 डिजिट हुए। तो सर 2 में से अगर तुम एक लेस करते हो तो कितने बचते हैं बताओ?
1. 1. तो माय आंसर शुड स्टार्ट विथ 1.4343। चलो समझ में आया अब तो सर ये तो हलवा हो गया। 271.8। 4343 तो सेम ही रहने वाला है, लेकिन सर पॉइंट से पहले कितने डिजिट है? 3. 3. तो 3 में से एक लेस करोगे तो क्या आएगा? 2. 2. 2 point. सो इट वुड बी 2.4343। बस यही तो है। और इतनी छोटी सी चीज से लोग भाग रहे थे, और मैथ्स में खाली फोकट के बेचारों के 10वीं और 12वीं के मार्क्स गिर गए। 2.43. Let's confirm this by using the Excel. So you can find the log from Excel itself. 2.718 closing the bracket, that is 0.43425. लॉगरिथम थोड़ा सा अप्रोक्सीमेटेड रहता है क्योंकि वहां पे 4 डिजिट रहता है, इसलिए। अब तुम log 27.18 का लोगे, सो log of 27.18. Now log to the base of 10 we are taking, closing the bracket, pressing enter, that is 1.4342. उसकी जगह पे मैं अगर 271 कर दूं, वो देखो सेम आंसर आ रहा है अपना 2.4343। डिजिट क्लियर? तो चलो आगे बढ़ते हैं भैया। एक्सेल कर रहा है तो क्यों हमसे करवा रहा है? एक्सेल तो सब कुछ करेगा, तो फंडामेंटली तुम स्ट्रांग नहीं होगे क्या? 0.60 multiplied by 0.4343. What do we get? Can someone tell me, please? Zero point 26058. 0.26058. 0. And that will be log of 038. फिर से बताओ बेटा, ये सही लिखा है ना? Yes, sir. Okay, thank you. So log of x equals to 0.26058. लेकिन सर हमारी अधूरी कहानी, और कहानी को अगर खत्म नहीं करोगे तो बड़ा पछताओगे। और उसमें तेरा घाटा मैथमेटिक्स का कुछ नहीं जाता। Now if you have something on a left hand side which is a log, you take it on the right hand side, then log will become antilog. So x will become antilog of 0.26058. अब अपन जाएंगे एंटीलॉग में। तो एंटीलॉग है ना भैया, डेसिमल है ना, उसके बाद वाले के आंकड़े के ही देखना है। प्लीज पुट दिस इन द बैक ऑफ योर माइंड। वॉट एवर द नंबर यू हैव गॉट बिफोर द डेसिमल, जस्ट इग्नोर इट। टेक द एंटीलॉग ओनली ऑफ द डेसिमल विच इज ओनली आफ्टर द डिजिट्स यू हैव गॉट आफ्टर द डेसिमल। सो 0.26 के, और आप देखोगे एंटीलॉग के टेबल में तो पॉइंट से ही शुरू होता है। देखो नीचे जाओ, है कि नहीं? 0.26 देखो, पॉइंट से ही सब है। अब जो वैल्यू देखने का तरीका है वो तो सेम ही है। फर्स्ट टू डिजिट लेने के, उसमें कॉलम 0 की और 5 का मिन डिफरेंस। सो सर 0.26 में 0 की कॉलम तो हो गई 1820 itself, because that's what the 0 की कॉलम, and then we have got the min difference of 5, which is gonna be this one, 1 2 3 4 and 5. So you again add this 2 in 1822, sorry, in 1820, so it will become 1822. चलो यहां तक 1822 तक समझ में आया। अब मैं आगे बढ़ूं। अब डेसिमल कहां पे रखना है उसके ऊपर बात करेंगे। अच्छा, लोग लेते समय अपन है ना, पॉइंट से पहले कितने डिजिट है वो देखते थे, ठीक है? अब एंटी लॉग लेते समय हम पॉइंट से पहले कितने डिजिट है वो नहीं देखना है, पॉइंट से पहले क्या नंबर है वो देखना है। सो पॉइंट से पहले क्या नंबर है, कौन बताएगा? चलो बताओ बताओ। 0. 0। तुम 0 में 1 ऐड करोगे तो क्या आएगा? 1. तो तुम्हारा जो आंसर है ना
वो एक डिजिट से शुरू होना चाहिए। तुम्हारा जो डेसिमल है वो एक डिजिट से शुरू होना चाहिए, 1.822। अगर यहाँ पे 0 की जगह 1 होता तो मैं क्या करता, एक में एक ऐड करता, तो क्या आता, 2 आते। तो मेरा आंसर 2 डिजिट से शुरू होना चाहिए, मतलब 18.22 होना चाहिए। समझ में आ रहा हो कि नहीं समझ में आ रहा हो? Yes, sir. Done. Yes, sir. पक्का? Yes. लॉक कर दिया जाए कंप्यूटर जी, लॉक कर दिया जाए? Yes, sir. ओके चलो लॉक कर देते हैं। तो x equals to 1.822. Let's put that in the main formula we had started. So 10 lakhs multiplied by 1.822, so it will come 18 lakhs 22,000. That's gonna be the fund value of Mrs. Melinda Gates. Now I will go to her proudly, you know, कि हमारे बच्चों ने सॉल्व कर लिया है। मेलिंडा गेट्स 0, रौनक सर के बच्चे 1, स्कोर अपना हो गया सेटल। तुम्हें लगा कि हमें नहीं आता है, हमारा नॉलेज टेस्ट हो गया, अब हमें सब कुछ आता है। Is it clear? May I have a confirmation from students that we are crystal clear with this? Now with this you may solve Yes, sir. any other questions. Very good, thank you so much. So with this we can solve any other questions of FV of single cash flow. Now in the next session we will go to future value of annuity. So that's it from my side for a day. FV of single cash flow should be crystal clear to you. Please put your enrollment number as a mark of your attendance for a day. That's it from my side. Bye-bye, take care, sayonara, enjoy the rest of the day. See you all again in the next session. Thank you, sir. Thank you. Thank you, sir. Thank you, my pleasure. Welcome to all of you.